Dear students, today we are going to continue our topic, that is lines and angles. Yesterday we learned something about the introduction of lines and angles. Now today we are going to understand, we are going to define some terms, define some types of angles. So let's start. Types of angles. Types of angles. Now we have type 1. We will here define the angles, but see, first one is acute angle. Acute angle. What do we mean by an acute angle? Acute angle means, yesterday I told you the definition of an acute angle, and acute angle and angles are measured in degrees. That I told you yesterday. So what do we mean by an acute angle? Okay, so beta, an angle whose measure, an angle whose measure lies between 0 degree and 90 degree. ओके, ना वो 0 के बराबर होगा ना 90 के बराबर होगा. Between means between 0 and 90. For example, you can take 5 degree, 10 degree, or so on. You can take 89 degree, but not equal to 90. So like this, for example, if you have to draw like this, okay, suppose this is here, let us it be 45. Okay, this is also an acute angle because it lies between 0 and 90. Now second is obtuse angle. What do we mean by an obtuse angle? An angle whose measure lies between 90. Okay beta, you have to write the definition as this: an angle whose measure lies between, not 0 and 90, you have to write between 90 and 180 degree. An angle whose measure, तो यहाँ पे आपको यही लिखना है, an angle whose measure lies between 90 and 180 degree. 90 and 180 degree. That means वो 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम. For example, you can take it as 91 degree. This is also an obtuse angle. You can take it as 179 degree. It is also. तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एंगल्स होंगे they are obtuse angles. लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एंगल ये है, उसको क्या कहते हैं, और एक एंगल ये है, उसको क्या कहते हैं. देखो बेटा, थर्ड एंगल इज राइट एंगल. You can also write this as after acute angle you can write right angle. Okay, I forgot the sequence. So right angle, what is a right angle? An angle whose measure is equal to 90 degree. तो जो 90 डिग्री के बराबर होगा, 90 degree is like this. These are called the perpendicular line, mutually perpendicular lines. 90 is ये भी straight, ये भी straight. Okay, तो both are straight but it stands erect on this line. ठीक है ना, ये सीधे जैसे पोल जमीन पे होता है ना, वो तो ऐसे नहीं होगा, that stands erect. ओके, तो वो 90 बनाता है उस अर्थ के साथ, और ठीक है ना, तो दिस इज a 90 degree एंगल. ओके बेटा, तो आफ्टर दैट I will try to explain angle fourth, that is this straight angle. Straight angle. What do we mean by straight angle? An angle whose measure is equal to 180 degree.
वो एंगल जिसका मेजर कितना होगा 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोटेक्टर देखा होगा, नीचे वाली लाइन अगर आप देखोगे तो वहां पे वो ऐसे होता है प्रोटेक्टर, ठीक। तो इस लाइन को, इस वाले एंगल को हम कहते हैं, ये जो सारा एंगल ये ऐसे बनता है, इट इज 180। ये एंगल कितना होता है 180। उस प्रोटेक्टर में बीच में ऐसे भी होता है, ठीक। तो ये वाला 90, ये वाला 90, तो जब हम इसको दो ही से करेंगे, ये वाला 90 बनेगा ये पार्ट, और ये वाला 90, टोटल ये कितना बनता है यहां से यहां तक, इट इज 180। तो उस एंगल को क्या कहते हैं हम, स्ट्रेट एंगल। गॉट इट। तो ये स्ट्रेट एंगल है। देन इट इज आल्सो वी हैव अनदर टाइप ऑफ एंगल, से इट इज फिफ्थ, reflex angle. Reflex angle. What do we mean by reflex angle? Okay, तो reflex angle उस वाले एंगल को कहते हैं an angle whose measure lies between 180 and 360। वो वाला एंगल जिसका मेजर 180 से लेके 360 तक होता है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, उसको कहेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। देखो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, दिस, ठीक, दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला होता है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ, रिफ्लेक्स एंगल, ओके। ये इसका रिफ्लेक्स होता है, दैट मीन्स इसकी रिफ्लेक्शन, अगर यहाँ पे 30 होगा तो रिफ्लेक्स कितना होगा, इट इज रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 30। वो कितना होगा, टोटल एंगल जो होता है वो 360 होता है माइनस 30, तो दैट इज 270। 270 इज द रिफ्लेक्स एंगल, दिस इज 270। ये वाला कितना एंगल है, दिस इज 270 डिग्री। Got it? This is the reflex angle. After that, we have another angle, that is the complete angle. Complete angle. Complete angle. तो simply an angle whose measure, याद रखना ये, you have to write this, an angle whose measure is equal to 360। वो एंगल जिसका मेजर 360 होगा, दैट इज कॉल्ड है कंप्लीट एंगल। जैसे आपका क्लॉक 1 मिनट में, अगर हम सेकंड हैंड लेंगे तो सेकंड हैंड 1 मिनट में 360 एंगल बनाता है, या मिनट हैंड 1 घंटे में 360 डिग्री बनाता है एंगल, ठीक है ना। कंप्लीट एंगल इज दिस, दिस इज द कंप्लीट एंगल। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जब ये घूमता है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेकंड हैंड, जब ये घूमेगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, तो फिर ये खुद यहाँ पे वापस पहुंचेगा, तो दैट मीन्स इसको कितना टाइम लगता है यहाँ पे 360। तो इस एंगल को कहेंगे हम 360 डिग्री एंगल और कंप्लीट एंगल। तो दीज वर सम टाइप्स ऑफ एंगल्स, लेकिन टेकन वन एट अ टाइम। अब अगर हम दो एंगल्स को एक साथ लेंगे, कितने एंगल्स को, दो एंगल्स को, अगर हम दो एंगल्स को एक साथ लेंगे, उन एंगल्स को क्या कहते हैं, लेट अस सी another type of angle when we take two angles, that is complementary angles. Complementary angles, ये दो, because I wrote here angles, that means it is in plural form, so I will write two angles. Two angles are said to be complementary, are said to be complementary if their sum is equal to 90। बस दो एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री तब कहेंगे जब उनका सम क्या, कितना होगा, 90 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगा 70 + 20 इज इक्वल टू 90, तो मैं क्या कहूंगा 70 प्लस, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैं कहूंगा कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको कहना होगा व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70, तो वो क्या है 90 - 20, दैट इज 70, ठीक। और अगर आपको कहना होगा व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20, दैट इज 90 - 70, दैट इज 20। What is the complement of 70? Sorry, it is 90 - 70.
90 minus 70, that is 20. Sorry. What is the complement of 20? It is 90 minus 20 and it is 70. गॉट इट बेटा। जिसका आपको कॉम्प्लीमेंट ढूंढना होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होगा 90, तो जिसका कॉम्प्लीमेंट आपको ढूंढना होगा 90 से वो माइनस करना है, बस यही करना है। गॉट इट। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड अनदर वन इज सप्लीमेंट्री। Supplementary angles. Two angles are said to be supplementary if their sum is equal to 180. जैसे इसमें है two angles are said to be complementary if their sum is 90. यहाँ पे आपको लिखना है two angles are said to be supplementary if their sum is 180. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊंगा कि एक 120 है, फिर 120 को 180 तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना होगा 60, तो दैट इज 180. सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक, दैट मीन्स एंगल 60 और एंगल 120, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो अगर क्वेश्चन होगा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60, सॉरी फाइंड द supplement of, I will write 105 degree. What will be the supplement of 105? Supplement is simply आपको 180 से माइनस करना है क्या 105. सो 180 से 105 जब माइनस करेंगे वो क्या है 75 डिग्री. ओके. इसी तरह अगर आपको फाइंड द supplement of for example supplement of 20. What is the supplement of 20? It is 180 minus 20, it is 160. क्यों सप्लीमेंट? क्योंकि 20 और 160 जमा करके 180 बनता है. 105 और 75 को ऐड करके कितना बनता है 180. तो दिस वाज समथिंग अबाउट द मोर डेफिनेशंस. Inshallah tomorrow we will take our exercise. We will try to prove the first exercise of this chapter. Till then, have a good time. Thank you.